کئی برسوں سے مقید کشمیری علیحدگی پسند رہنما و JKLF کے چیئرمین محمد یاسر ملک کو NI کی خصوصی عدالت نے دیا مجرم قرار۔ مذکورہ عدالت 25 مئی کو ان کی سزا کا کرے گی اعلان۔ ملک کی جائیداد اور اثاثوں کا تخمینہ لگانے کے بعد بیان حلفی کرنی ہوگی جمع۔ ملک نے کسی بھی وکیل سے مدد لینے سے کیا انکار، عمر قید کی ہو سکتی ہے سزا۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر نائب صدر عمر عبداللہ کا یاسر ملک کے عدالتی فیصلے پر بیان۔ جہاں عدالت کا حق ہے وہ کارروائی کے بعد فیصلہ سنائے گی، اسی طرح یاسر ملک کا بھی حق ہے کہ وہ اوپری عدالت جا کر اس کیس کے حوالے سے اپیل دائر کرے۔ سپریم کورٹ نے روڈ ریج کیس میں نوجوان سیاسی لیڈر سدھو کو سنائی 1 سال کی سزا۔ سدھو کو اس کیس میں پہلے ملی تھی راحت، لیکن سڑک حادثے میں مرنے والے شخص کے اہل خانہ نے نظر ثانی کی درخواست کی تھی دائر۔ قتل کیس سے ملی ضمانت، غفلت شعاری کے الزام میں 1 سال کی سزا۔ دلچسپ خبر یہ ہے کہ سیاسی اننگ بھی نوجوت سنگھ سدھو دلچسپ مرحلے میں ہوئی داخل۔ اور سری نگر کی پریس کالونی سے پریس والوں کا انخلا جاری۔ سرکار کے محکمہ اسٹیٹس کی طرف سے نوٹسز ملنے کا سلسلہ جاری۔ درجنوں صحافیوں کے رہائشی اور دفاتر خالی کرانے کا حکم، سلسلہ آگے بھی جاری رہنے کی امید۔ صحافیوں کے پریس کالونی انخلا پر سرکاری حکم ناموں پر عدالتی فیصلے بھی زیر بحث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ گراؤنڈ رپورٹ کے آج کے شمارے میں اپنے میزبان تجمل اسلام کا سلام پہنچے۔ آپ سری نگر اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست جڑے ہیں۔ ٹیلی ویژن نشریات کے ساتھ ساتھ انسٹا، یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے سے اس نشریات کو آپ عالمی سطح پر ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، شروعات کرتے ہیں نئی دلی کی اس بڑی خبر کے ساتھ۔ ممنوعہ تنظیم جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سابق چیئرمین محمد یاسر ملک کے حوالے سے تہاڑ جیل کے بعد اب سزا کا کہیں نہ کہیں معاملہ سامنے آیا ہے۔ نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں کئی برسوں سے مقید کشمیری علیحدگی پسند رہنما اور حکومت ہند کی جانب سے کالعدم قرار دی گئی علیحدگی پسند جماعت لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسر ملک کو جمعرات کے روز قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA کی خصوصی عدالت نے بغاوت، وطن دشمنی اور دہشت گردوں کا مجرم قرار دیا ہے۔ دہشت گردی کا مجرم قرار دینے کے علاوہ مذکورہ عدالت میں 25 مئی کو ان کی سزا کا اعلان کیا جائے گا، لیکن اس سے قبل استغاثہ سے کہا گیا کہ وہ یاسر ملک کی جائیداد اور مالی اثاثوں کا تخمینہ لگائے تاکہ سزا کے ساتھ ساتھ یاسر ملک کی کہیں نہ کہیں یہ اثاثوں کے ذریعے جو تخمینہ لگایا جائے گا اس کے حوالے سے رقومات بھی جمع کی جائے گی، جبکہ عدالت نے یاسر ملک سے ان کی جائیداد اور اثاثوں سے متعلق بیان حلفی بھی طلب کیا ہے۔ گزشتہ برس ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے ہونے والی ایک سماعت کے دوران محمد یاسر ملک نے کسی بھی وکیل کی مدد لینے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ گواہوں پر خود ہی جرح کریں گے۔ یاسر ملک پر یہ الزام ہے کہ بھارت کے نئے دہشت گرد مخالف قانون ان لافل ایکٹیویٹیز یعنی یوپا اور انڈین پینل کوڈ کے تحت عائد کیے گئے ہیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے جن الزامات میں فرد جرم عائد کی گئی ہے ان میں زیادہ سے زیادہ یاسر ملک کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ 10 مئی کی سماعت کے دوران انہیں 2017 میں دہشت گرد کارروائیاں، دہشت گردی کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنا، دہشت گردانہ حملوں کی سازش، مجرمانہ اور سازش اور ملک دشمن خیالات کے اظہار جیسے جرائم کا مرتکب قرار دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے کہیں نہ کہیں کئی معاملات پر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یاسر ملک
वकील के पास इस केस को लेकर जाएंगे, उनकी तरफ से जरह किया जाएगा, उसके बाद बहस होगी। लेकिन मोहम्मद यासीन मलिक ने गुज़श्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद आज भी खामोशी से ही इस केस को सुना, फैसला सुना और बारी सिक्योरिटी हिसार के बीचों बीच में वापस बाहर आ गए। यासीन मलिक के इस फैसले के हवाले से जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ आराय जमा होने लगी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला खता पीर पंचाल और मुतअद्दिद इलाकों के खसूसी दौरे पर हैं। एक हफ्ते के दौरे के दौरान कई अवामी इज्तिमा से खिताब किया, लेकिन ज़राए अबलाग ने लगे हाथों इसी सवाल से मुतल्लिक उमर अब्दुल्ला की राय या उनकी आरा जानने की कोशिश की। उमर अब्दुल्ला ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में कि मोहम्मद यासीन मलिक के इस NIA कोर्ट के फैसले के बाद उमर अब्दुल्ला की इनफरादी राय क्या कुछ है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के वजीर आला और होम मिनिस्टर रह चुके हैं और इसके अलावा मरकज में वजीर ममलकत बराए खारजी अमूरात भी रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जिस तरह से अदालत को यह हक हासिल है कि बहस करने के बाद, जरह करने के बाद फैसला सुनाया जाता है, इसी तरह यासीन मलिक को भी हक है कि इस अदालत के बाद वो ऊपरी अदालत में इस केस को कहीं न कहीं अपील के तौर पर सामने लाएं। अदालत का हक है कि वो जो मतलब कार्रवाई के बाद अपना फैसला सुनाते हैं और जिसके बारे में फैसला सुनाया गया हो उसका भी हक है कि वो उससे ऊपर वाली अदालत में जाके उस फैसले को तब्दील करने की कोशिश करें। अदालत ने अपना फैसला सुना लिया है, अब इसके बाद यासीन मलिक क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला खता पीर पंचाल और मुतअद्दिद मकामात पर खुसूसी दौरों के दौरान बता रहे हैं कि 4 अगस्त 2019 की तारीख बदलने के बाद मरकज के फैसले से क्या वाकई तौर पर आम शहरी, आम दहबाश, आम इंसान किस तरह से जिंदगी के शब रोज गुजारता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये कोई सियासी जलसा नहीं है, ये कोई जलसा नहीं है जिसमें आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कुछ करने जाएगी उसकी बात करें, बल्कि ये जलसा है अवाम के हाल जानने का। एक बार फिर ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के पास चलते हैं जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को इंतखाबात के हवाले से पूछा, क्या इंतखाबात जम्मू कश्मीर में कराने के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयारियों का आगाज कर चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 अगस्त 2019 या 5 अगस्त 2019 के बाद अवराक पलट फेरने के बाद कहा था तामीर और तरक्की होगी, दहशत पसंदी का इख्तिताम होगा और जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी जो है जो नुक्ता उरूज पर थी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा ग्राउंड अपनी हकीकत खुद बताता है और ग्राउंड जीरो पे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया रिपोर्टर से बातचीत करते हुए कहा, इलेक्शन का फैसला हमें नहीं करना है, इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। वो कब करेंगे, किन हालात में करेंगे, कैसे करेंगे, फैसला उनको करना। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। वो मौजूदा इंतज़ामिया से तंग आ चुके हैं, परेशान हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको अपनी मर्जी की हुकूमत मिले। और नाज़रीन, इसी बीच में बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक क्रिकेटर, साबिक कमेंटेटर, कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा और पंजाब में कांग्रेस पार्टी के कप्तान नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाने का हुक्म जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू को सुनाई 1 साल की सजा। पंजाब कांग्रेस लीडर सिद्धू को साल 1988 के रोड रेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। इस मामले में सिद्धू को पहले कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया गया था, लेकिन सिद्धू को सड़क हादसे में मरने वाले शख्स के अहल खाना ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी। अब इस अर्जी पर समाअत करते हुए सिद्धू को 1 साल की कैद की सुनाई गई। सजा सुनाने के अलावा अहल खाना के मुताबिक ये सिर्फ मारपीट या धक्का मुक्की का मामला नहीं है, बल्कि इसे कत्ल जैसा संगीन जुर्म समझा जाएगा। इल्जाम लगा था कि सिद्धू ने लड़ाई के दौरान एक 65 बरस के शख्स को घूंसा मारा था और इस शख्स की मौत शदीद चोट लगने की वजह से हुई थी। इब्तिदाई रिपोर्ट्स में उस वक्त सिद्धू पर कत्ल का मुकदमा चलाया गया था, लेकिन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने उन्हें
1999 में इन इल्जामात से बरी कर दिया था। इस मामले में 22 मार्च को सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि जिस शख्स ने यह इल्जाम आयद किया कि सड़क हादसे में सिद्धू के ड्राइविंग की वजह से उसकी मौत वाक़या हुई, इसमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। बाद में अहल खाना ने एक तरफ फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और करीबन 3 दहाइयों के बाद ये केस दोबारा उभरने लगा। फैसला आया कि साबिक क्रिकेटर, साबिक भारतीय सलामी बल्लेबाज और क्रिकेट कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू जो है, उन्हें अहल खाना की उस फैसले के बाद, उस अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अब नवजोत सिंह सिद्धू जो है, उन्हें अपनी सियासी इनिंग, क्रिकेट की इनिंग के बाद सियासी इनिंग काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। विदिन कांग्रेस पार्टी ज्यादा कांग्रेस पार्टी में सिद्धू की पोजीशन न बन सकी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के करीब होने के बाद जो नताइज पंजाब से आने लगे, उसके बाद कहीं न कहीं इल्जामात और लीडरान पर भी थे। कैप्टन अमरिंदर अलग हो गए। अब नवजोत सिंह सिद्धू जो है, अब सियासी इनिंग में अपना अगला साल जेल में गुजार सकते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से आप इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं। इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से टेलीविजन नशरियात के साथ साथ आप इस लाइव टेलीकास्ट को मुल्क भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, अब जिला बारामूला की सूरत हाल बताते हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस जिला बारामूला ने आज ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीवान बाग बारामूला में पेश आए ग्रेनेड हमले के बाद 4 गिरफ्तारियों का दावा किया। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारियां उस तनाजुर में ली गई जो केवल 50 घंटों के अंदर अंदर इकदाम उठाए गए और उसके बाद जो हमलावर थे उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि हमलावरों को भी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के सामने नकाब ओढ़कर पेश किया गया। शुमाली जिला बारामूला के दीवान बाग इलाके में मंगल की शाम को हुए ग्रेनेड हमले में मुलविस 4 मिलिटेंटों और एक इयानतकार को हिरासत में लेने का एसएसपी बारामूला ने दावा किया। देखिए, जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारी जो पहली इसमें हम कहेंगे जो हमारी पहली कामयाबी इस तरीके से हुई है कि जहां पे हमें ये 4 टेररिस्ट जो हैं, जो लश्कर तोयबा के टीआरएफ के फ्रंट के फॉकन स्क्वाड से हमको ये इनके जो कारकुन हैं वो मिले हैं और बड़ी ही मुझे लगता है हिडन तरीके से, बड़ी ही चालाकी से ये ग्रुप ऑपरेट करता था और अपने फुटप्रिंट्स को बचाने की, छुपाने की कोशिश करता था ताकि इन पे जो है कानून का शिकंजा ना कसे। और मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे फ्यूचर के इवेंट्स जो हैं, फ्यूचर के जो इंसिडेंट्स हैं, वो हमने प्रिवेंट किए हैं। शुमाली जिला या सरहदी इलाका कुपवाड़ा के जिला सुपरिटेंडेंट ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान शुमाली जिला कुपवाड़ा में पुलिस की तरफ से मनशियात के खिलाफ अपनी ताज़ा कार्रवाई में एक खातून समेत 3 स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया और इस मौके पर एसएसपी ने इतला दी कि एक ही घर से, जिनका नाम मोहम्मद शफी गुजर के तौर पर बताया जाता है, 12 किलो चरस जब्त किया गया, जबकि 5,64,000 रुपया नकदी भी बरामद की गई। टीम कल एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी, लालपुरा पुलिस स्टेशन जो है हमारा, वहाँ के इलाके की दीवर गांव है, जहाँ पे एक शख्स जो मोहम्मद शफी जिसका नाम है, उसके घर में कुछ मतलब इंफॉर्मेशन ये थी कि उसने कुछ चर्च की जो है स्मगलिंग करने की तैयारी की है और क्वांटिटी को पैक करके रखा गया है। उसी के बेस पे, इंफॉर्मेशन के बेस पे वहाँ के जो डीएसपी हैं और एसएचओ हैं, उनकी टीम तश्कील दी गई है। उनमें वहाँ पे मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में सर्च की गई है घर की, और सर्च के दौरान वहाँ 12 किलोग्राम जो है वो चर्स और उसके साथ साथ कैश भी वहाँ से बरामद हुआ। और ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये वही कैश है कि जो डील का आधा हिस्सा हो चुका था और उस डील में और बाकी पैसा अभी आना बाकी था। इसमें तफ्तीश इब्तिदाई मरहले में है और इसमें लगता है कि लेडीज भी मुलव्वस होगी, क्योंकि घर में अगर चीज़ कहीं कंसील करके रखी है तो कुछ ना कुछ जो घर के दूसरे अफराद हैं उनका मुलव्वस होना भी लाजमी है। एक और कार्रवाई जिसमें केरल में, क्योंकि वहाँ पे आपको मालूम होगा कि एलओसी पे गेट जो है, गेट के बाहर भी कुछ हमारी जैसे खेती बाड़ी या गाँव भी हैं कई जगह पे, और ये 2 शख्स
इधर जम्मू कश्मीर सरकार में महकमा एस्टेट्स की तरफ से ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे यानी सहाफ़ियों के लिए जिनके रिहायशी सहूलियात श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी, जम्मू के गांधी नगर और पुंछ हाउस और मुतअद्दिद मकामात पर महकमा एस्टेट्स एक्रीडेशन और बाकी लवाजमात पुर करने के बाद ये एकोमोडेशन दिया करते थे। अब इस एकोमोडेशन को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया जा रहा है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी से प्रेस वालों का इनखला इस तरह से जारी है और रोजनामा मिरर ऑफ कश्मीर के बाद मारूफ न्यूज एजेंसी करंट न्यूज सर्विस CNS ने भी प्रेस कॉलोनी को कई दहाइयों के बाद अलविदा किया। मजीद दर्जनों मीडिया इदारों के दफातर खाली करने के सरकारी अहकामात सादिर किए जा चुके हैं। सरकारी हुक्मनामे ने महकमा एस्टेट की तरफ से श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में गुज़श्ता 3 दहाइयों के बाद दफातर खाली हो रहे हैं। महकमा एस्टेट की तरफ से मकतूब मौसूल होने का सिलसिला जारी है। सहाफ़ियों के रिहायशी क्वार्टर्स और दफातर खाली करने का सिलसिला काफ़ी तेज़ हो गया। जम्मू कश्मीर में मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौर में काफ़ी ज़्यादा, जिनमें कश्मीर न्यूज़ सर्विस के अलावा कश्मीर टाइम्स, कई ग्रेटर कश्मीर का भी अपार्टमेंट और कई एक टेलीविजन और अखबारात से मुंसलिक सहाफ़ियों के जो रिहायशी सहूलियात थी उसको ख़त्म कर दिया गया। महकमा एस्टेट्स कहता है कि ये इलीगल है, अनऑथराइज्ड है, क्योंकि अलॉटमेंट का ऑर्डर सरकार की तरफ से सिर्फ 11 महीनों तक ही मिलता है। उसके बाद इस हुक्मनामे का रिन्यूअल बड़ा लाजमी होता है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद मकामात पर सहाफ़ियों को न सिर्फ अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए बल्कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उन्हें श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी या जम्मू के दीगर मकामात पर रिहायशी सहूलियात और दफातर के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक्ट में गुंजाइश है, जिसकी रूह से तस्लीम शुदा सहाफ़ियों को ये एकोमोडेशन दी जाती है। लेकिन इंदिया यह है कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों के बाद काफ़ी दफातर खाली किए जा सकते हैं और मतबादिल के तौर पर एजेंसीज के ऑफिस या दीगर सहाफ़ियों को ये अलॉटमेंट की जा सकती है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन गुज़श्ता कई दहाइयों से जम्मू कश्मीर में फुटबॉल की तेज़ रफ्तारी के लिए और इस खेल को मज़ीद बेहतर करने के लिए अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन में इंतखाबात नहीं हो पा रहे हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात फिलहाल इल्तवा में हैं, इसी तरह से हुक्मनामा कोर्ट की तरफ से जारी किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के जो ओहदेदार हैं उनके जो ओहदे हैं फिलहाल मुंजमद कर दिए गए हैं और अब जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन जो है वो फिलहाल एडहॉक कमेटी के हवाले जम्मू कश्मीर फुटबॉल किया जा सकता है। कोर्ट की तरफ से हुक्मनामे में पहले गुंजाइश रखी गई थी कि जब तक इंतखाबात हो जाएं इस कमेटी को यह हक दिया जाए ताकि वो जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन जो है वो इंतखाबात होने तक अपना काम जारी रख सकें। लेकिन अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि फिलहाल एडहॉक कमेटी का ऐलान किया जाए जो जम्मू कश्मीर फुटबॉल को चलाने में कामयाब हो जाएगी। वाज़ह है कि जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन गुज़श्ता कई सालों से जम्मू कश्मीर में अदालती अहकामात और मुख्तलिफ परेशानियों के बावजूद अपने अपने ओहदों पर फाइज होते रहे और अपना काम चलाते रहे। और कई एक फुटबॉल अंजुमनों ने, जिनमें साबिक इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर भी हैं, उन्होंने भी एतराज़ किया था कि फुटबॉल एसोसिएशन आखिर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने से खौफ क्यों खाती है। अब एडहॉक कमेटी में कौन लोग होंगे? इसमें एक्सपर्ट एक्स फुटबॉलर होंगे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होंगे और जिनकी खिदमत हासिल करने के बाद जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के तर्ज पर जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन का फिलहाल एडहॉक कमेटी अपना काम चलाएगी जब तक जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के लिए बाकायदा तौर पर इंतखाब अमल में नहीं लाए जाते हैं। जम्मू म्युनिसिपल कमेटी भी लगातार सुर्खियों में है। गुज़श्ता दिनों उन्होंने मजहबी मकामात से पब्लिक एड्रेस या लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर भी करारदाद लाई। आज चंद्र मोहन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने आज खुसूसी बातचीत के दौरान गुलिस्तान न्यूज़ और JK न्यूज़ के नुमाइंदे को बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स पर जो आवाज़ें उठी हैं आने वाले दिनों में इस पर एक करारदाद लाई जाएगी, बहस होगी और जो हाउस की कार्रवाई फैसला करेगी उससे आवाम को अमलाना होगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने से ज्यादा परेशानी होती है उन्हें अब म्युनिसिपैलिटी के हाउस की कार्रवाई का इंतजार करना होगा।
जहां पहले इस कार्रवाई को रोक दिया गया था और इस बिल को भी लाया गया था, लेकिन आइंदा कुछ दिनों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू जो है प्रॉपर्टी टैक्स पर बाकायदा तौर पर बिल को हाउस में लाएगी। मंजूर होने की सूरत में इससे अमलाना लाजमी होगा। प्रस्ताव आया था लीडरशिप कमेटी की तरफ से, जो हमारी मेन कमेटी है, कि कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी चाहिए, चाहे कमर्शियल को लगे चाहे बड़े बिग हाउसेस को लगे, जैसे बैंक्वेट हॉल हैं या बड़े बड़े शोरूम हैं। तो उसके बारे में चर्चा हुई थी, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर ने अपनी बात रखी थी और इसको हमने डेफर किया था अगले हाउस के लिए। तो अगले हाउस में फिर आएगा, जो पास होगा वो सब जनता को सूचित किया जाएगा। तो इसके लिए विरोधाभ्यास भी शुरू हो गया है और राजनीतिक पार्टी और भी काफ़ी लोग। विरोधाभास तो होता ही है, विरोधाभास तो हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हर चाहता है कि मेरी वार्ड में काम हो। नाला है और एक नाला 5-6 करोड़ 8 करोड़ से कम बनते नहीं है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। तो नाले तभी बनेंगे या डेवलपमेंट तभी होगी जब हमारे पास पैसा होगा। हम हर वक्त कटोरा लेके सरकार के पास जाते हैं और सरकार जो हमारी एलजी गवर्नमेंट वो दिल्ली जाती है कटोरा लेके। इस सिस्टम को इस प्रथा को ख़त्म करना होगा। आज भी शासन मिल रहा है। नाज़रीन, जड़ीबल श्रीनगर में आज मकामी लोगों ने सरापा एहतजाज होकर मुत्तलका या मकामी स्कूल इंतजामिया पर जबरदस्त बरहमी और नाराजगी का इजहार किया। मकामी वालिदैन एसोसिएशन के मुताबिक जो बच्चे ज़ेर तालीम इस मकामी स्कूल में हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मामलात हैं, वाशरूम्स, टॉयलेट ब्लॉक्स की कमी और इसके अलावा खेल के मैदान की हालत ज़्यादा बेहतर नहीं है और पढ़ने और पढ़ाने का जो दस्तूर होना चाहिए था उन तकाज़ों को पूरा नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने इस ज़मन में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को भी मुतला किया कि किसी स्कूल में अगर बुनियादी सहूलियात ही ना हो, वाशरूम्स काबिल इस्तेमाल भी ना हो, सफाई सुथराई का इस्तेमाल भी ना हो, तो उस स्कूल का क्या फ़ायदा और स्कूल से तालीम और तरबियत कैसे हासिल की जा सकती है। और इंतज़ामिया ने बाद में बताया, कुछ देर पहले मैंने स्कूल इंतजामिया से राब्ता कायम किया तो उन्होंने कहा कि वालिदैन के इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से बेशतर स्कूल में कोविड-19 कोरोना वायरस के बाद स्कूल काफ़ी देर तक बंद रहे, मेंटेनेंस का काम चल रहा है और वालिदैन के जो इल्ज़ामात हैं ये बेबुनियाद हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। हालांकि वालिदैन ने कहा कि स्कूल में अब सिलेबस या करिकुलम कवर करने के लिए अब बहुत ज़्यादा चार्जेस लिए जाते हैं जो कि नाकाबिल बर्दाश्त हैं। स्कूल इंतजामिया ने कहा जो गाइडलाइन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हमें देता है हम उसी के मुताबिक चलते हैं, ताहम छोटी बड़ी चीजों को दुरुस्त करने के लिए पहले ही हमने काम शुरू किया हुआ है। जड़ीबल खुशहाल सर एरिया जड़ीबल ये मेन चौक गाशियार तो हवल इशू या स्कूल शाहन पब्लिक स्कूल इशू ये पे फीस बिचार 4 वर बकाया तम कंपनसेशन तम कंपनसेशन तम पकन ब्रो प्रेजेंट फीस सह करो क्लियर या प्रीवियस बकाया सह पकनो मसल यम मसल हेवान वो एनुअल चार्ज हो ठीक मगर अमें प्रिंट आउट यह क्या एनुअल चार्ज बे वो फैसिलिटी क्या गेम्स फैसिलिटी कहें फैसिलिटी बहरकैफ मकामी सिविल सोसाइटी जड़ीबल ने अपील की है कि स्कूल इंतजामिया और वालिदैन के बीच में मीटिंगें होनी चाहिए, मशवरत होनी चाहिए ताकि स्कूल ने जो कामयाबियाँ इस इलाके के लिए तालीम और तरबियत हासिल करने के लिए पहुँचाई वो बहुत अहम है और स्कूल में इन मामलात को दुरुस्त भी किया जा सकता है। नाज़रीन, आखिर पे ये खबर कि जम्मू कश्मीर में सड़क हादसात में बेतहाशा इजाफे के बाद आज अजीब व गरीब सूरत हाल में हलमतपुरा कुपवाड़ा में सड़क हादसा पेश आया, तहम इसमें किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। JK-09 की गाड़ी जो है कुपवाड़ा की ये आगे की तरफ चल रही थी कि इससे अचानक ड्राइवर के मुताबिक इससे ट्रैफिक पुलिस ने ऐसी जगह रुकने के का इशारा किया जहां पर बहुत ज़्यादा बेहतर सड़क नहीं थी और यही वजह है कि गाड़ी रोकने के बाद ड्राइवर नीचे आए। जब तक वो नीचे आए गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता लुढ़क गई। शुक्र करो दाएं बाएं बड़ा कोई नाला न था या कोई आम बच्चे वहां से न चल रहे हों और नहीं तो इंसानी जान भी तलफ हो सकती थी। ड्राइवर ने अपनी रुदात बताते हुए कहा ट्रैफिक पुलिस अगर सब्र तहम्मुल से काम लेता या किसी दूसरे आगे चलकर इसे रुकने का इशारा करता तो शायद इस हादसे को बचाया जा सकता था।
बस आवास पंजाब पे वोतनस यतस वोतस बह आई दपक ट्रैफिक वाले वाल यूर गाड़ी लाग साइडस हेलपल चढ़ाई पे कुपवारा हेलपल चढ़ाई पे अतस थो मे गाड़ी साइडस तो गोस ट्रैफिक वाले नश हैंड ब्रेक थो मे गाड़ी वलित ब्रेक लगित हैंड ब्रेक गाड़ी रिडे तो गई बुंद इंसान बचाए बाकी अत मे बुई अकुन मे सीमट लोड ट्रैफिक वाले कर शिड़ी शिड़ी दपक यूर वाल यह पे तुम नश तुम नश ट्रैफिक वाले नश। नाज़रीन, वादी में आम शहरियों की हिलाकत पंडित महाजिरीन के मामलात के बाद अब 15,000 मजीद नीम फौजी दस्ते जम्मू कश्मीर कल तक पहुंच रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मरकज की तरफ से इस फैसले के बाद ये वो अलग सिक्योरिटी दस्ते होंगे 15,000 के करीब जो अमरनाथ यात्रा के सिक्योरिटी कवर के लिए अलग से होंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज।